से हर रोज क्रूरता और बर्बरता कर रही है, देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ एक पहले बहुत बड़ा निर्णय दिया। 2G स्कैम में 122 लाइसेंस रद्द करके यह प्रमाणित कर दिया कि कदम कदम पर यह सरकार नियम, कानून और संविधान का उल्लंघन करती है और जीरो लॉस की बात करके देश के साथ धोखा किया। और तमाम ऐसे वाकये हैं, हर रोज लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर ये प्रहार कर रहे हैं। आज जो सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय देश की सर्वोच्च अदालत का आया है। मैं उसके ऊपर कुछ बात करूं, उससे पहले इस पूरे केस को जिन्होंने निस्वार्थ भावना से लड़ा, एक मिशनरी की तरह, ऐसे हमारे राम जी मेरे साथ में हैं, तो मैं क्योंकि पूरे केस को ये प्रेजेंट कर रहे थे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से, मैं उनसे कहूँगा कि इस पूरे संदर्भ में हमारे मीडिया और मीडिया के माध्यम से, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का मीडिया यहाँ पर है, आज एक बहुत बड़ा सच सामने आया, उसके बारे में श्याम जी आप सबको जानकारी देंगे। राम जेठमलानी जी। First of all, we had not gone to the Supreme Court for relief. We had made no complaint against anybody. We wanted to make a complaint before the people of India. The things which I wanted to tell the people of this country, I could not tell because I am a lawyer and I do, as far as possible, respect the rule of, lispendence. That is matter sub judice. Mr. Dhawan was appointed by the Supreme Court as the friend of the court to assist the court. I first of all wish to pay him a compliment that he did a great job, and his address to the court was more forthright, more vigorous and more pungent. I do not even know today what Mr. Dhawan's reaction to this judgment is. But I do wish publicly to record my gratitude to Mr. Dhawan for the manner in which he presented the case. I would wait for a copy of the judgment to be given to me because I have too much respect for Supreme Court judges to criticize them without knowing what they have given the reasons for their conclusions. The main issue before the Supreme Court was who started that trouble that night. Even from the reports that I am getting, the Supreme Court has found that the police has acted hastily. There was no emergency of any kind as they pretend, and that they should not have resorted to the actions which they have taken. To my mind, Swami Ramdev has won the case. I don't expect the Supreme Court to use the language which I would have used or which Mr. Dhawan used. Nor am I blaming the poor police officers who are present here. The fact remains that the entire crowd that night, after having made a prayer for peace, had gone to sleep. They were all sleeping when this attack took place on this unarmed crowd. I am today concerned with a matter which I have been holding my tongue about. What is the role of the Home Minister in this?
in this most aggressive, immoral, and almost a criminal operation. Here is his own statement which he issued. And I want the press to take up this matter if you mean to do justice by the people of this country. A decision was taken that Shri Baba Ramdev would not be allowed to organize any protest or undertake any fast unto death at Ramlila ground, and that if he persisted in his efforts to do so, he would be directed to remove himself from Delhi. I want to know, in the name of the law and the constitution, who has given power to Home Minister of India that he can deport anybody from Delhi merely because he does not want him to lecture to the people. He is the one who is an enemy of the constitution and the right of free speech of everybody. There is no denying the fact that Swami Ramdev's public declaration was that he is fighting against corruption in this country. He had taken up a cause which I had gone to court for. The cause was that $1,500 billion of this country's money has been taken away by these dacoits, stashed in foreign countries. This money belongs to the poor people of this country. If it is brought back, every Indian family will get 2.5 lakhs. So far as the finding of the court has been concerned, it has completely held that the crowd was a peaceful crowd. It is the police which is guilty of aggression. This should make somebody resign. The political bosses of the country are responsible for the action of these people, particularly because Mr. Chidambaram said in his press conference that I had decided that Swamiji will not be allowed to fast. This country is being ruled by him. He is the ruler of this country. And I am glad to tell you that so far as Swami Ramdev is concerned, he is a yoga teacher, all right. But this whole nation is sick. This government is more sick. They need this yoga treatment from this great yogi. And I have not the slightest doubt that he is my comrade in arms. He will stand by me and I will stand by him. Our fight against corruption will continue until I get the judgment. I will not comment upon the contents of the Supreme Court judgment. But I understand that the Supreme Court has held, and nobody doubts that the Supreme Court has held, that the action of the police was unwarranted. पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया अपने जजमेंट में, जितना मैंने सुना है अभी, कि सरकार के पास में बहुत बड़ी ताकत होती है और उस ताकत का सरकार ने दुरुपयोग किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का, संविधान की मूल भावना का हनन किया, उसको बुरी तरह से रोंदा, मानवाधिकारों के मूल्यों का हनन किया, क्रूरता की, बर्बरता की। धारा 144 शांति बनाए रखने के लिए लगाई जाती है, यह शांति को भंग करने के लिए लगाई गई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और यह भी बार बार सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी अभी तक चीजें आई हैं, उनसे साफ होता है कि सरकार ने, और क्योंकि सरकार में इसलिए बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस तो हुक्म की गुलाम है और आप सभी मीडिया वाले उस दिन वहां पर थे। और जो पहला स्टेटमेंट आया दिल्ली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का, उसने कहा हम मजबूर थे क्योंकि हमें ऊपर से आदेश थे। ये सीधा सीधा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का बयान आपके सभी टीवी चैनलों पर भी रिकॉर्डेड है, मैंने सुना है। तो पुलिस जब मजबूर थी, आखिर पुलिस को मजबूर क्यों कौन कर रहा था? और जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के रूप में जिन्होंने एक बहुत प्रामाणिक भूमिका निभाई, उनका धन्यवाद भी ऑलरेडी श्री राम जेठमलानी जी ने किया, राजीव धवन जी ने, उन्होंने भी इस बात को पूरी प्रामाणिकता के साथ कोर्ट के सामने रखा कि लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में थे जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, गुप्ता जी से लेकर के तमाम आला ऑफिसर,
और उन गृह मंत्रालय के निर्देश पर, केंद्र सरकार के निर्देश पर यह सारी क्रूरता और बर्बरता की गई। जहां तक ये बात आती है कि लोगों को हमने क्यों नहीं समझाया, ऐसी बात सामने आ रही है। आप सब वहां पर थे। मैंने करीब आधा घंटा जितने भी वहां पर लोग थे उनसे इस बात को कहा कि कोई पुलिस के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई पुलिस के साथ हाथापाई नहीं करेगा। आपको पुलिस डंडे भी मारती है तो आप मार खाइए, लेकिन आप प्रहार मत कीजिए। और आप सब मीडिया के भाई वहां पर थे, सबने देखा, आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हमने बार बार कहा कि आप किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं करेगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। उसके बाद मैंने शांति की अपील करने के बाद, पूरा रिकॉर्डेड वर्जन है और आप सबने भी सुना है, कई टीवी चैनलों पर भी उस समय, क्योंकि जिसके कैमरे नजदीक थे उन्होंने वॉइस भी ली है, और वो कि मैंने कम से कम 3 से 5 बार सरकार के जो भी वहां पर भेजे हुए, मैं एक तरह से उनको, एक तरह से खूनी हो चुके थे पुलिस वाले उस दिन, उनको बार बार कहा मुझे गिरफ्तार कीजिए, आप लोगों के ऊपर लाठियां क्यों बरसा रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। अब जस्टिस चौहान साहब का, जो अभी कोर्ट में जो लोग थे, उन्होंने सुना, हमारे भाई जयदीप आर्य जी भी, क्योंकि इस पूरे मामले में राम जेठमलानी जी के साथ में थे, जस्टिस चौहान जी भी कहते हैं कि रात को सोना ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और सोते हुए लोग लगभग मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में मृतप्राय होते हैं, वो कोई ऑफेंस नहीं कर सकते रात को। तो उस समय उनके ऊपर ये क्रूरता और बर्बरता क्यों की गई। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को दोहरा सकता हूं, वो ये, काले धन, भ्रष्टाचार और पूरी इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ये हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। और महात्मा गांधी जी से जब भी वो सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते थे, उस समय गोरों की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनसे बार बार पूछा जाता था, आर यू गिल्टी, क्या आप दोषी हैं। तो कहते थे आपके जो कानून बनाए हुए हैं उसके अनुसार आप मुझे दोषी ठहरा सकते हो, लेकिन भगवान का जो विधान है, जो न्याय है, उसमें मैं दोषी नहीं हूं। और यदि प्रोटेस्ट करना अपराध है तो जितने भी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हुए, समाज के लिए जिन्होंने काम किया, चाहे वो महात्मा गांधी जी हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी हैं, चाहे लोहिया जी हैं, या और तमाम लोग, मैं उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन उनके पथ का अनुगामी हूं। इस एक सन्यासी होने के नाते लड़ाई लड़ रहा हूं। यदि चोरा चोरी में वहां महात्मा गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, वहां लोगों की मृत्यु भी हुई, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने भी महात्मा गांधी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कारण हमने वहां पर लोगों को मौत के मुंह में सुलाने के लिए नहीं बुलाया था, हमने तो काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोगों को बुलाया था। और यहां बहन राजवाला की पुत्रवधू यहां पर बैठी है। ये पूरा का पूरा खाली एक परिवार की बात नहीं, जिन्होंने, जिस राजवाला बहन ने इस आंदोलन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसके प्रति भी सरकार ने एक शब्द दुख की संवेदना का नहीं बोला। ये कितनी क्रूर है ये सरकार। ये सारा का सारा साबित होता है। और बाकी पूरा जजमेंट आने के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। हम अपना आंदोलन काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा जारी रखेंगे, और जब तक ये काला धन नहीं आएगा और जो काला धन लूटने वाले उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे कितना ही संकट आए, कितनी ही क्रूरता हो, जालिम कितने ही जुल्म करे। देखिए, हम तो नाराज उन सब से हैं जिन्होंने करीब ये
400 लाख करोड़ रुपए देश का लूटा, और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भी अब तो सीबीआई हमेशा गवर्नमेंट की कठपुतली बन के काम करती है। लेकिन एपी सिंह ने तो अभी इस बार कह दिया कि भाई हम भी इस बात को मानते हैं कि 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा काला धन बाहर है। ये कितनी बड़ी बात है। 500 बिलियन डॉलर काले धन के ऊपर सरकार कोई बात नहीं करती, डायरेक्टर सीबीआई का भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं करती। तो बाबा रामदेव को जो है आप फांसी चढ़ाना चाहें तो मैं तो चढ़ने के लिए तैयार हूं इस अभियान के लिए। देखिए, दिल्ली पुलिस यदि इस बात को कहती है कि स्वामी रामदेव चाहते तो ये मामला नहीं होता, अरे हम तो रात को 12 बजे वहां पर सोए हुए थे, हमने किया क्या? अगला फैसला नहीं किया है, जजमेंट पढ़ने के बाद बताएंगे। अगला आंदोलन की घोषणा बहुत जल्दी करेंगे और इस बार आर पार की पूरी लड़ाई होगी। काला धन जो विदेशों में जमा उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके जब तक केंद्र सरकार नहीं लाएगी फिर ये आर पार की लड़ाई पूरी चलेगी। दिल्ली में होगा। यहाँ एक बहन राजबाला की पुत्रवधू है, मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द कहें। बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक हद तक सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस सारे मामले में दोषी सिर्फ दिल्ली पुलिस ही थी। और दिल्ली पुलिस क्योंकि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को, पब्लिक को केयर करे, और स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं, उल्टा उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। I have one amendment to make to this. According to me, the Delhi police is less guilty than the Supreme Court thinks. The real guilty persons are the political masters who have ordered this activity to take place. यदि ये काला धन इन लोगों का नहीं है तो इनको विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक नया प्रोविजन करके जनरल पर्पज एफआईआर दर्ज करके पॉलिटिकल एक्सपोज पर्संस के तहत कार्रवाई करके बेनिफिशियल ओनरशिप के तहत कार्रवाई करके उसको वापस लाने में आपत्ति क्यों है? कंपनसेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, हम कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, हमने इंटरवीन किया था इसलिए कि ये जो हुआ ये कभी दोबारा हमारे देश में ना हो, हमें न्याय मिले, हमारे साथ हमारे पूरे देश की पब्लिक है उसे न्याय मिले। हम इसकी एक निष्पक्ष जांच चाहते थे, उसके बारे में कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ और हम आज भी सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि उस पे किया जाना चाहिए और उसके बारे में एक डिटेल मतलब एक कमेटी बनानी चाहिए, एक निष्पक्ष कमेटी जो जांच कर सके, जो लोगों के सामने सच लाए। क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज थी जो दिल्ली पुलिस ने उसी टाइम छीन ली, जो किसी को नहीं मिली, जो ऑर्गेनाइजर को भी नहीं मिली, वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के पास थी। उन्होंने उसको टेम्पर किया और किसके आदेश पे किया, कौन लोग फंस रहे थे उससे, ये सबको पता है, सारे मीडिया वाले भाइयों को बहनों को पता है। तो इस मामले की एक निष्पक्ष जांच की हम आज भी अपील करते हैं कि एसआईटी गठित होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए, जो सही में जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। स्वामी जी का ये कोई निजी हित का मुद्दा नहीं था, ये स्वामी जी का पर्सनल आंदोलन नहीं था, ये हम सब के लिए, आप सब के लिए किया गया एक आंदोलन है। ये हमारे देश के भूखे मरते बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए किया हुआ आंदोलन है और ये पैसा हमारे देश का है जो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन जो लूट के वहाँ जमा करते हैं उन्हें भी ये कल को इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पता ही नहीं कितनी पीढ़ियों उनकी इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगी, वहीं पे रह जाएगा वो पैसा। हम अपना भाग्य समझते हैं कि हम इस देश में पैदा हुए और हमारे बीच में एक ऐसे पुरुष, एक योगी पुरुष खड़े हैं जिन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया है हमारे अपने देश को उठाने के लिए। ये अंग्रेजों की तरह बांट के राज करने की नीति है कि मुसलमानों हिंदुओं को लड़ा दो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हम सम्मान करते हैं, सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों का हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि 3 महीने में पूरा सच आएगा और इसका दायरा बढ़ना चाहिए। मात्र दिल्ली पुलिस को केवल अपराधी मान करके, केवल शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कठपुतली बने, इसलिए दिल्ली पुलिस से दायरा गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, क्योंकि काले धन से संबंधित था और ये पूरी देश की व्यवस्था से संबंधित था, इसलिए पूरी सरकार इस जांच के मामले में आनी चाहिए। और जो सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, अनैतिक काम कर रही है, मुझे लगता है वो सत्ता में रहने का ही अपना नैतिक और संवैधानिक अधिकार खो चुकी है।